طرح کے اس پلیٹ فارم سے خوشی کی کوئی بات، کوئی کرن جو ہے وہ بہت کم نکل کر آتی ہے. نور ہمارے ساتھ ہیں تو بہت سے زیادہ خوشی کی ہے. میرا خیال ہو ہی رہی ہے کیونکہ جب میں دوبارہ دباتا ہوں اس کو یاد کر کے، لیکن ہمارے حصے میں جو لکھا ہوا ہے اسے یاد کرنا، اسے دہرانا وہ بہت ضروری ہے. بلوچستان کی تحریک کے جو نوجوان دوست ہیں ہمارے، ان کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، ہائر کر دیتے ہیں. کچھ دن تک ان کی خبر آ جاتی ہے کہ وہ کہاں ہیں. پھر اچانک معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی فوج سے کسی مقابلے میں مارے گئے. گزشتہ مہینے میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا. بہت نوجوان کوئی جس کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا تھا، کتابوں کے حوالے سے جو اردو بازار میں کتابیں چھپانے اور پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے میں خود بھی وہ طالب علم تھا. وہ ایک تھوڑا سا ذاتی دکھ بھی ہو گیا. ایک تو اس کی یاد میں جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ ہم ایک منٹ اختیار کریں. اور دوسری سب سے اہم بات جو ساری دنیا کے لوگ مل کر فلسطینیوں کو ہلاک کر رہے ہیں، ان کو معصوم بچوں کو جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس کا کوئی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ ہم کیا کہیں، کیا سوچیں، کیا کریں. اس سے تو بہت سارے ہیں جو آپ بھی بیان کرتے ہیں، میں بھی بیان کرتا ہوں اور لوگوں سے بھی سنتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر لمحے ہر روز وہاں پر معصوم بچہ اور ہلاک ہو رہے ہیں. ہم ساری دنیا کے طے کردہ پلان کے مطابق اگر یہ ہم کہیں کہ وہ صرف اسرائیل کر رہا ہے تو شاید یہ جھوٹ ہوگا. اسرائیل نے جس وقت حملہ شروع کیا ہے اس وقت سارا یورپ اور امریکہ جو ہے وہ وہاں آ کر کھڑا تھا، اور تمام اسلامی ممالک جو اس کی گود میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو چکے تھے وہ خاموش تھے. تمام ہم جیسے ممالک جو ہیں وہ تو آج تک کچھ نہیں ہوتے. یہ سارے دکھ ہیں. اس وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی آمد پر میں اس قسم کے کسی کیفیت کا شکار ہوں، مگر یہ مجبوری ہے. اور ارتقاء جو ہے وہ اصل میں ایسے ہی لوگوں کا ایک تھنک ٹینک ٹائپ کی چیز ہے جو 1991 سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کی تشکیل دینے والے لوگ تھے، یا جن کے خیال میں یہ بات آئی کہ ارتقاء جیسا کوئی ادارہ بننا چاہیے، وہ زیادہ تر لوگوں کا تعلق جو ہے وہ کمیونسٹ تحریک سے تھا. باقاعدہ کمیونسٹ موومنٹ کا وہ حصہ تھے، چاہے وہ لکھنے پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ سڑک پر مظاہرہ کرنے والے ہوں، چاہے ٹریڈ یونین کو آرگنائز کرنے والے ہوں، چاہے صحافی ہوں، چاہے ادیب ہوں. وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی دانش میں اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے تھے، سمجھتے تھے، اور کمیونزم کے نقطۂ نظر کے فلسفے پر جو ہے وہ چلتے تھے. لیکن ارتقاء جو ہے وہ کوئی کمیونسٹ پارٹی نہیں ہے، کمیونسٹ پارٹی کا آرگن نہیں ہے، اس کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. یہ چونکہ کمیونسٹ پارٹی بہت کمزور ہو گئی تھی اور کوئی ترتیب نہیں تھی کاموں میں، تو یہ ہوا کہ کم سے کم نوجوانوں تک پہنچا جائے اور صحیح بات اور خیالات کو جو ہے وہ لے کر کے ان تک پہنچایا جائے، جس کے راستے دن بدن مسدود ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو مجھے فخر ہے کہ آج ہم آپ کو جو ہے خوشامدید یہاں پر کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے پتہ نہیں میں الفاظ میں ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا کہ ارتقاء انسٹیٹیوٹ کے لیے یہ کس قدر خوشی کی بات ہے، مجھے نہیں معلوم. یہ کبھی اگر کچھ اس پر کسی نے لکھا تو شاید لکھ سکے گا انسٹیٹیوٹ کے لیے وہ کس قدر اہم بات تھی، کس قدر خوشی کی بات تھی. بات شروع ہوتی ہے سرخ کارواں کے ہم سفر. اور میرا خیال ہے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سرخ کارواں کے ہم سفر ہیں. ایک صاحب کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ان کا خیال ہوگا کہ وہ سرخ کارواں وہ ہیں. آج وہ یہاں مسلسل ایک ہفتہ گزارنے کے بعد کئی سالوں بعد آئے ہیں، لیکن وہ سرخ کارواں کے ہم سفر ہو گئے. اور اس میں جو ہے وہ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت روایتی سے جملہ میں دہرانے کی جسارت نہیں کروں گا. ایک روایتی جملہ ہوتے ہوتے رہ گیا مجھ سے. ایک شام دور، انہوں نے کہا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. پھر مجھے یاد آیا
کہ دلی اکیڈمی نے آپ کو ایوارڈ دیا تھا. اس میں 2 کتابوں کا نام آتا ہے آپ کی, میرے حصے کی روشنائی اور سرخ کارواں کے ہم سفر. اور میں نے تمام لوگوں کی آرا کو ایک طرف رکھتے ہوئے جب پوسٹر بنایا تو اس پہ لکھ دیا کہ سرخ کارواں کے ہم سفر. پھر جیسے جیسے آپ کے بارے میں زیادہ جانا, کیونکہ میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, آپ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو مطلب دوسری حیثیت کا شخص ہوں کہ اپنا خدا ایک عورت. یہ میں نے بہت دفعہ سنا تھا, لیکن یہ کس کا لکھا ہے مجھے معلوم نہیں تھا. اپنا خدا ایک عورت, اس میں میرا آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے ضرور, کیونکہ پھر مرد کہاں جائیں گے. لیکن یہ کہ خدا کو جو مرد بنا کے پیش کیا گیا ہے اس سے میں قطعی اختلاف کرتا ہوں. وہ میں اس بارے میں اپنی زندگی کے جو سمجھداری کے جو تھوڑی بہت آئی 45 سالوں سے یا 50 سالوں سے وہ جنگ حصہ ہوں. فیمنسٹ کہنا تو شاید پوری بات کا احاطہ نہیں کرتا, کیونکہ میں تو کمیونسٹ ہوں, اور کمیونسٹ جو ہیں وہ تمام پہلوؤں کو لے کر زندگی کے اور انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو لے کر چلتے ہیں. مگر مجھے اس آپ کی یہ بات بے انتہا جو ہے وہ اس نے اپیل کیا کہ اپنا خدا ایک عورت. تو آپ کی تعریف تو جو لوگوں کو کرنی ہے وہ کریں گے. میں اپنے جذبات آپ سے کہے, ارتقا انسٹیٹیوٹ آپ کو شامل کہتا ہے. یہ میں نے آپ کو کہا کہ ارتقا انسٹیٹیوٹ جو ہے 1991 میں بہت سارے دوستوں کی کاوشوں سے, ہمارے بزرگوں کی کاوشوں سے جو ہے یہ تشکیل پایا, اور اب ہم اس کو لے کر جو ہے وہ چل رہے ہیں. اس میں بے شمار لوگوں کا حصہ ہے. اس میں ایک چیز میں آپ سے اور کہہ دوں کہ ایک بین الاقوامی حیثیت حامل شخصیت پروفیسر حمزہ علوی, وہ پاکستان جب آئے تو پہلی ڈائریکٹرشپ ارتقا انسٹیٹیوٹ کی جو ہے وہ انہیں سپرد کی گئی, اور ان کی زندگی میں ان کے نام سے ہم نے لیکچر شروع کیے تھے. حمزہ علوی ڈسٹنگوشڈ لیکچر, جب ان کا پہلے لیکچر میں تو موجود تھے, دوسرے میں بیمار تھے کہ آ نہیں سکے. اس کے بعد ہم نے اس کو تبدیل نہیں کیا, یادگاری لیکچر میں ہم نے تبدیل نہیں کیا, ہم نے اس کو ڈسٹنگوشڈ لیکچر ہی لکھا. اور اگر آپ یہاں رہتی تو 30 تاریخ کو پھر ہمارا ایک حمزہ علوی لیکچر تھا, اس کا حصہ ہوتی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ سے طرف آنے, اور میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری بے انتہا شاندار دوست رضا واحد صاحب سے کہوں گا کہ وہ تشریف لائے. رضا واحد آپ سے گفتگو کریں گی, اور یہ کوئی فارمل سیشن ہے, جس دوست کو جس صاحب کو آپ کو جو کچھ کہنا ہے وہ آپ ہم سے جو ہے ضرور شیئر کریں, ہم سے بات کریں. اس سلسلے میں لوگوں کی تعداد کم رکھی گئی تھی, کوشش کی گئی تھی کہ زیادہ لوگ جو ہے وہ نہ آئیں. تو دیکھیے اس پہ آپ مایوس نہیں ہوگا, ہماری کوشش تھی کہ لوگوں کی تعداد کو کم رکھیں. وقت کم ہے تو کچھ لوگ ہوں گے تو زیادہ بات چیت ہو سکے گی, زیادہ سوال جواب ہو سکیں گے. تو آپ پلیز شروع کیجیے. شکریہ, بہت شکریہ. مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں شروع کیا کرنا اور ختم کیا کرنا, کیونکہ کبھی اس طرح کا کام کیا نہیں کہ آپ جب سے بیٹھ کے باتیں کریں. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں آپ سے وہ ایک بیٹی کی طرح بات کروں جو ایک سرخ گھر میں پیدا ہوئی تھی, یا اس عورت کی طرح بات کروں جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں اور جو میں پڑھ رہی تھی ابھی آپ کی جو سیانی دیوانی, اور میں جو پڑھتی جا رہی تھی میں ڈاکٹر عامر سے کہہ رہی تھی ڈاکٹر عامر میں وہ لکھا ہوا ہے جس سے میں آج کل گزر رہی ہوں, سڑک چلنے لگی وہ ہے جس سے میں آج کل گزر رہی ہوں. تو بہت کچھ ہے جو میں سمجھ رہی ہوں کہ جیسے میں یہ سب کچھ کہنا چاہتی ہوں اور آپ نے کہا ہوا ہے وہ کہ میں اس طرح سے بات کروں, یا میں ایک ایسی مصنف سے بات کروں جس نے وہ کچھ لکھا ہے جو ہم سب کو پڑھنا چاہیے. میں بہت سارے سوال آپ سے اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ جو سب لوگ بیٹھے ہیں سب کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہوں گے, لیکن چاہوں گی کہ آپ اپنا زندگی کی ابتدا, کیونکہ وہاں سے میں شاید بہت اچھی طرح سے ریلیٹ کر سکتی ہوں کیونکہ میں ایسے ایک گھر میں بڑی ہوئی ہوں, اپنی ابتدا سے جو آپ کا سرخ زندگی سے تعارف ہے اس بارے میں تھوڑی سی بات ہے, اور اس کے بعد آپ کو جی
बहुत शुक्रिया रेड फकान इंस्टीट्यूट, सबसे पहले बहुत शुक्रिया राहत भाई, डॉक्टर जाफर साहब, सबका, आप लोगों का यहाँ मौजूद रहने का, निदा का जो मुस्तकिल कांटेक्ट में रही और तय करती रही कि कब किस वक्त कैसे मैं पहुँचूँगी। सबसे पहली बात तो ये कि शुरुआत एक इंसान की इब्तिदा कहाँ से होती है ये तय कर पाना मुश्किल है। पैदाइश से, उस माहौल से जिसमें इंसान पैदा हुआ, या जब उस माहौल को समझना शुरू किया, या जब उस माहौल को लगा कि उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो इब्तिदा मेरे ख्याल से मैं ये मानूंगी कि जिस वक्त मैंने अम्मी और अब्बा के सिखाए हुए रास्ते को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन मैंने ज्वाइन किया कॉलेज में आने के बाद, वो मेरे ख्याल से इब्तिदा मानी जानी चाहिए। और उस वक्त थोड़ा बहुत लिख भी रहे थे, 10 साल की उम्र से कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया था, वो सब कुछ था। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त स्टूडेंट फेडरेशन में बहुत अच्छी तरह से स्टडी सर्कल होता था, तो उस स्टडी सर्कल में डाल दिया गया और बिल्कुल ये रियायत नहीं की गई कि ये सज्जाद ज़हीर की बेटी है, मतलब ABCD से मार्क्सिज्म पढ़ो, वो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, और बाकायदा उस दौरान सवालात और डांट फटकार और फिर छोटे छोटे काम कि ये करो, यहाँ पे जाकर के पोस्टर्स लगाओ, वहाँ पे जाकर के, उस वक्त दीवार पे लिखना अलाउड था, तो दीवार पे लिखो, फिर अगले दिन क्रिटिसिज्म होता था कि तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ी अपनी हैंडराइटिंग अच्छी करो कि स्लोगन्स पढ़े जा सके। तो और फिर थोड़ा दूर भेजना ग्रुप्स बना के, वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड था मेरे लिए, जो जिसने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि ये राह मेरे लिए सही रहा है, मैंने सही चुना है। मुझे मुश्किलें होंगी, ये उस वक्त भी मालूम था, मुश्किलें इंटरनल पार्टी में भी होंगी और बाहर भी होंगी, लेकिन बहरहाल ये जगह मेरी रहेगी, ये राह मेरी रहेगी। तो उस पे चलते रहे, और फिर ये कि जॉब्स और पढ़ाई, और फिर कॉलेज ख़त्म, और फिर यूनिवर्सिटी ख़त्म, और फिर PhD ख़त्म, वो सब होता रहा। लेकिन ये जो इब्तिदा हो गई थी सुर्ख राह पर चलते रहने की, वो मुझे याद नहीं कि कभी डगमगाई। सो बहुत बुरे वक्त आए, एमरजेंसी में तो बहुत ही ख़राब वक्त था, और वो वक्त था जब हम लोग बिल्कुल मतलब कॉलेज में थे। उसके बाद जब एमरजेंसी ख़त्म हुई 1977 में, तो जो पार्टी आई जनता पार्टी, वो बहुत हद तक कम्युनिस्टों के खिलाफ थी, क्योंकि कम्युनिस्टों ने इंदिरा गांधी का साथ दिया था, तो वो उसका एक अलग तरह का निग्लेक्ट करना वो चलता रहा। और हम लोग उसी वक्त थोड़ा सा पढ़ लिख करके नौकरियां तलाश कर रहे थे, तो वो मुश्किलें होती रही। लेकिन बहरहाल डगर अपनी रही, उम्मीद है मरते दम तक रहेगी। मैं चूँकि वक्त आपने क्योंकि वक्त की लिमिटेशन बताई हुई मेरी नज़र घड़ी पे है, तो हम सवाल साथ साथ लेते जाते हैं, साथ साथ सवाल लेते जाते हैं लोगों के, क्योंकि ताकि जो जहन में सवाल है वो भी जवाब होते रहें। फिर और मैं भी साथ साथ में कुछ सवाल करती जाऊँगी, तो अगर कोई सवाल ऑडियंस अभी करना चाहती है साथ साथ करते, ताकि गुफ्तगू चलती रहे, आगे बढ़ती रहे। जैसे उन्वान था कि कुछ यादें कुछ बातें जी, तो जो आपने किताब भी लिखी है जिसमें अपने वालिदैन का बड़ा भरपूर बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी सामने आया है, तो उसमें से कुछ यादें अगर आप ताज़ा करें कि कैसा वो रहा, वो तो खैर बहुत खूबसूरत किताब है जिसमें आपने शख्सियत जी, जिस तरह की शख्सियत थी अम्मी अब्बा की दोनों की, उससे मुझे बहुत फ़ायदा बचपन में ये हुआ, छोटी सबसे होने की वजह से, कि बहुत बड़े बड़े अदीबों का, बहुत बड़े बड़े मार्क्सिस्ट लीडर्स का बहुत साथ मिला और उनको सुनने का मौका मिला। और घर में ये माहौल था कि 7-8 बरस की हो, इसलिए सो जाओगी 8-9 बजे, ये नहीं है, अगर लोग बैठे हुए हैं तो ये इजाज़त होती थी कि बैठ ही रहो।
सो बैठ के उन लोगों को सुनना, उनसे जो भी कुछ हासिल हो सके वो करना, और फिर उसके बाद अगले दिन अम्मी अब्बा से सवाल करना कि ये समझ में नहीं आया उन्होंने जो कहा और प्लीज़ समझाइए। तो वो माहौल अम्मी अब्बा ने पैदा किया था। मैं एक ख़ास करके वाक़या शेयर करना चाहूँगी कि अब्बा कितने फिराक दिल थे, और ख़ास करके लड़कियों के मामले में ज़्यादातर ये होता है कि बाप जो है वो थोड़ी सी सख्ती रखेंगे। तो अब्बा दिल्ली मूव हो गए थे, पार्टी का पेपर निकाल रहे थे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए थे। सो दिल्ली आते थे, लखनऊ आते थे कभी कभी। मैं लखनऊ में थी, अम्मी भी लखनऊ में थी। एक दिन उन्होंने कहा, लखनऊ में उनकी लाइब्रेरी थी, तो एक दिन उन्होंने कहा मैं 11 वर्ष की थी, क्या तुम 11 साल की हो गई हो, तुम मेरी जो सी भी किताब चाहो वो पढ़ो। तो 11-12 वर्ष की उम्र की लड़की का आप समझ सकते हैं कि क्यूरियोसिटी किस तरह की होगी। मैंने किताबों पे एक नज़र डाली और ये ख्याल था कि लेडी चैटर्जीज़ लवर जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो निकाल ली। अच्छा, अम्मी ने जो आके देखा कि मैं ये पढ़ रही हूँ, ये मेरे हाथ में, एकदम आग बबूला हो गई, खबरदार कैसे, किस तरह से, बहुत डांट पड़ी। कभी अब्बा ने इजाज़त दी थी? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे अब्बा पता नहीं क्या कहते रहते हैं, ये नहीं उन्होंने कहा होगा, तुम ऐसे बना रही हो क्योंकि तुम्हारा पढ़ने को जी चाह रहा है। और उन्होंने किताब जब्त कर ली। मैंने अब्बा को खत लिखा कि ये ऐसे हुआ है, नहीं दिल्ली में। तो मैंने उनको खत लिखा कि ये तो आपकी बात नहीं मानी गई है और मुझे इजाज़त नहीं मिल रही है। तो अगली बार जब वो आए तो मैंने अम्मी के साथ पहली बार उनकी बहस देखी। वो बहस ज़्यादातर करते नहीं थे, अम्मी जो भी कह रही होती थी वो मान लिया जाता था घर में। हमारे यहाँ ज़बरदस्त फीमेल मेजॉरिटी थी, 4 हम बहनें थी, एक अम्मी थी, अब्बा चाहे अकेले थे। तो पहली बार मैंने उनको बहस करते हुए देखा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, वो 11 पार करके 12 की होने वाली है और उसको ये हक़ है। तो अम्मी ने लॉजिक दी कि बुरा असर पड़ेगा ये। अब्बा ने कहा कि हमें अपनी तरबियत पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि इस चीज़ का ख़राब असर पड़ जाएगा, उस चीज़ का ख़राब असर पड़ जाएगा। जब तक इन किताबों को रोकना चाहिए था, हम लोगों ने रोका, ठीक है, अब ये बिल्कुल नहीं होगा। तो पहली बार मेरे समझ में आया और ये बात तक याद मेरे साथ रही अपने बच्चों को बड़ा करने में कि एक उम्र के बाद उनको इजाज़त देना ज़रूरी है अपनी सिखाई हुई चीज़ों को, तरबियत को टेस्ट करने के लिए भी। आपकी जितनी बातें सुनती हूँ मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी को ये रिप्ले कर रहा है क्योंकि ऐसा बिल्कुल मैं डॉक्टर आमिर को अक्सर बताती हूँ कि मैंने इंटर से पहले बल्कि 12-15 साल की उम्र में वो कुछ पढ़ लिया था जो अखलाकन कतई जायज़ नहीं था, और वो इसलिए था क्योंकि अब्बा ने मेरे लिए वो किताबें छोड़ी दी थी और अब्बा ने मेक श्योर किया था कि मैं किसी ना किसी तरह से घुमा कर वहाँ पहुँच जाऊँ, पढ़ लूँ, समझ में आ जाए और फिर अपने हिसाब से उसको अलग अलग कर सकूँ। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी को रिप्ले कर रहा है और मैं सुन रही हूँ। जो वक्त मैंने एज एक बेटी के तौर पर जो बहुत मुश्किल गुजारा था कि जब मेरे अब्बा जेल जाते थे और वो 6 महीने की तब भी जेल चले गए थे और मैं यहाँ रह गई थी और अम्मा उनको निकलवाने लाहौर चली गई थी। और जब मैं क्लास 8 में थी तब भी वो जेल चले गए, 2.5 साल तक आपने उनको वहीं रखा था। वो बड़े कठिन लम्हे होते थे। अगर एज एक बेटी के तौर पे आप उस लम्हों से गुजरती कैसे थी और उसमें से निकलती कैसे थी? एक तो ये कि मेरी पैदाइश तब हुई जब अब्बा पाकिस्तान की जेल काट के लखनऊ पहुँचे थे। वैसे ये मेरे दिल में मैं पूछ नहीं पाई कभी, लेकिन मेरे दिल में ये बड़ा सवाल है कि क्यों भाई, मतलब यहाँ से इतनी मुश्किल जेल काट के गए थे, अम्मी ने 9 साल अकेले गुजारे थे, क्यों एक और बच्चा पैदा कर लिया और क्यों जिंदगी अपने आराम से अपने करियर देखते, अपनी पार्टी देखते। खैर सो वो एक ये है। तो मैंने वो वक्त देखा नहीं। मुझे जो याद है वो मैंने अपनी दूसरी किताब जो अम्मी की यादें लिखी है, स्याही की एक बूंद, उसमें है कि अम्मी प्रेग्नेंट थी, मैं होने वाली थी और अब्बा को सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी इंडिया की।
तो वो कहाँ जाएं ये सोचा जा रहा था कि आया वो इंग्लिस्तान आ जाएं या किसी और जगह, कोई किसी और मुल्क, इंडिया गए। तो अम्मी ने कहा कैसे नहीं मिलेगी सिटीजनशिप, वो तो खुद दिल्ली पहुंची अकेली, और उन्होंने 2-3 बार कोशिश की पंडित नेहरू से मिलने की, नहीं मिल पाई तो जाकर के तीन मूर्ति हाउस की सीढ़ी पे बैठी जब तक नहीं मिलेंगी। तो अब पता चला अंदर शायद नेहरू को कि भाई एक औरत है वो बैठी हुई है, वो हट नहीं रही, तो बुलवाया उन्होंने अंदर और पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रही है। उन्होंने कहा आप मेरे मियाँ को सिटीजनशिप क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा क्यों चले गए थे पाकिस्तान? उन्होंने कहा वो पार्टी का फैसला था। तो नेहरू ने कहा तो फिर पार्टी से कहो मुझसे बात करें, उनके एमपीज रोजाना मुझसे पार्लियामेंट में मिलते रहते हैं, वो लोग क्यों नहीं भेजते? तुम्हें भेज दिया इस हालत में यहाँ पर। अम्मी ने उस वक्त कहा था कि नेहरू जी, पार्टी का आपसे बात करने का तरीका कुछ और होगा, लाल झंडे का जुलूस आएगा आपके दरवाजे पर। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से कोई ये थ्रेटन करे। तो नेहरू जी ने पूछा था कि तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? उनका नहीं, मैं बस आगाह कर रही हूँ। तो उसके शायद 1.5 महीने या 2 महीने बाद मेरी पैदाइश हुई, और मेरी पैदाइश के 7वें दिन अब्बा की सिटीजनशिप हुई। तो अब्बा अम्मी कम से कम मुझे मानती थी कि मेरी वजह से हुआ। मतलब बहनों के बारे में बताओ। हमारी बड़ी बहन सबसे जो है वो थी नजमा, वो साइंटिस्ट थी, उनके साइंस में रुझान था उनकी। इत्तेफाकन की बात है कि अम्मी अब्बा से बहुत नज़दीक होते हुए और बहुत घर की केयर करते हुए, मतलब एक तरह से हम लोग तीनों की देखभाल उन्होंने की और गाइड उन्होंने किया कि क्या पढ़ोगी क्या नहीं पढ़ोगी। वो पार्टी के पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं थी, उनकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। तो वो लोग, वो और उनके मियाँ अली बाकी साहब लंदन मूव हो गए थे और वहीं रहते थे। और फिर वो अब्बा के इंतकाल के 6 साल बाद जब अम्मी बहुत ही अकेली हो गई और थोड़ा सा अम्मी भी बीमार रहने लगी, वो लोग इंडिया वापस आए और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उन्होंने वो प्रोफेसर हो गई, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गई। तो वो दिल्ली में रहती थी, नसीम उनसे छोटी थी 3 साल, वो एजुकेशनिस्ट थी, वो यूजीसी में काम करती थी, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में। उसके बाद उनको बतौर एजुकेशन क्या कहेंगे उसको, सफ़ीर या जो भी नुमाइंदा, उनको बहुत सारे मुल्कों में भेजा गया जहाँ हिंदुस्तान की दिलचस्पियाँ थी कि हिंदुस्तान यूनिवर्सिटीज़ खोलने में मदद कर रहा था या स्कॉलरशिप्स दे रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो वो बहुत मुल्क से बाहर रही। नादरा हम लोगों में सबसे ज़्यादा नामवर हैं, वो उनको गलत डिफाइन किया जाता है कि वो इसलिए नामवर हैं कि वो राज बब्बर की बीवी हैं। उनका हमेशा से ज़्यादा नाम था और बहुत अच्छा वो थिएटर करती हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने पास आउट किया है। और अभी भी उनका ग्रुप ऐसा है जो मुस्तकिल शोज़ कर रहा है। मेरे ख्याल से 50 साल से कोई ग्रुप, 47 ईयर्स उन्होंने मनाए अभी अपने, तो 47 ईयर्स तक हिंदुस्तान में किसी थिएटर ग्रुप ने सर्वाइव नहीं किया है। तो ये उनका ग्रुप है जो सर्वाइव कर रहा है। फिर हमें जो भी बहुत कुछ है। इक्टा से उन्होंने इक्टा में रही हो? जी नहीं, इक्टा में मैं रही, इक्टा की प्रेसिडेंट दिल्ली की मैं रही जी। तो आप बताएं, एज आई सेड। ये बात बताएं। अच्छा, इक्टा ज्वाइन किया मैंने, इसका भी बताएं। हाँ, स्टूडेंट फेडरेशन से। फिर ये हुआ कि आवाज़ अच्छी है, गाती अच्छा है। और ये तो जब मैं यूथ फेडरेशन में आई, स्टूडेंट जब ख़त्म हो गई स्टूडेंटशिप, तो ये हुआ कि फिर यूथ, नेक्स्ट स्टेप इज़ यूथ फेडरेशन। तो उसमें जब थे तो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, ये 1942 में कायम हुई थी। बलराज सानी, सज्जाद जलील, पीसी जोशी, जोहरा सहगल, एक और पारसी साहब थे, हाँ, उन्होंने मिल करके ये, हाँ, सोली पाटली वाला, उन्होंने मिल करके ये समझा कि 36 से जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन कामयाबी से चल रही है और जिसके ज़रिए राइटर्स ऑर्गेनाइज हो गए हैं, तो अब
दूसरा स्टेप लेने की ज़रूरत है कि आर्टिस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाए। इसके पीछे बहुत सारे और वजूहत थे। जब मैं देखती हूँ हिस्ट्री तो मुझे लगता है कि उस वक्त के लीडरान कितना ज़्यादा सोचते थे और कितना दूरअंदेश थे कि उसको बॉम्बे में कायम किया गया। बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री कलकत्ते से जस्ट शिफ्ट हो गई थी और फिल्में बन रही थी और फिल्मों में काम भी मिले, राइटर्स को भी, आर्टिस्ट को भी, म्यूजिशियंस को भी, सिंगर्स को भी, और फिल्मों पर असर डाला जाए कि प्रोग्रेसिव मुद्दे उठाए जाएं। तो लगान नहीं देनी है या ज़मीन का मसला है, महाजन ज़मीन खा जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, खेत मजदूर बढ़ते जा रहे हैं, इन सब मसाइल के ऊपर फिल्में बनी और वो लार्जली प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन और इप्टा के इन्फ्लुएंस की वजह से बनी। इप्टा एक वक्त ये था कि आसान बेहतर ये होता था, आसानी इसमें होती थी कि कौन इप्टा में नहीं है उनको गिन लिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर आर्टिस्ट जो थे वो सब इप्टा के हिस्सा थे। और इप्टा में ये था कि एक तरफ तो आप भाई काम करेंगे, तुम लोगों को काम करना ही, पीसी जोशी का प्लान था कि तो आप फिल्मों में काम करेंगे ताकि आपका घर चले, पैसा आता रहे, और दूसरी तरफ आप जो मजदूरों की चीज़ें हैं उस पर आप नाटक बनाएंगे। तो हमारे पास उस वक्त के जितने प्लेस मौजूद हैं जो हमारी एक तरह से कहेंगे हिस्टोरिकल हेरिटेज है, वो सब जिस वक्त टेक्सटाइल वर्कर्स की स्ट्राइक हो रही है, पेपर मिलों की स्ट्राइक हो रही है, नेवी में बहुत बड़ी ये हुई थी, उस पर प्लेस है। तो ये सारे इस तरह के प्लेस आप बनाएंगे और वर्कर्स में जाकर के खेलेंगे। और उसके बाद तरीका ये होता था कि जाहिर है आप वर्कर्स से पैसे तो नहीं वो कर सकते, तो एक लाल रंग का मफलर या गमछा उसको कहते हैं, अंगोछा जैसा पहनते थे आर्टिस्ट। तो उसमें से जो मेन आर्टिस्ट होता था या डायरेक्टर, वो उसको बिछा देता था शो के बाद। तो उस पर 54, 52, 10 पैसे जो भी जो डाल सके वो डालते, तो वो कलेक्शन होता था। और वो फिर प्ले के लिए भी रखा जाता था और वो आर्टिस्टों में भी होता था। अभी मैंने जावेद सिद्दीकी साहब का इंटरव्यू किया लंबा अपनी किताब के लिए, तो उसमें वो बता रहे थे कि कितनी खुशी होती थी वो 8 आने या 12 आने लेने पे। अच्छा, मैं पूछूं कि अब इस वक्त इप्टा की सिचुएशन इंडिया में क्या है, और क्या आपके ख्याल में गुजरते वक्त के साथ इस तरह के काम करना उतना ही मुमकिन है जितना कि आपके वक्त में था जब आप आतिश पूरा जवान था? काम आसान कभी भी नहीं रहा, ना पार्टी का, ना इप्टा का, ना प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का, ना इस तरह के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन काम मुश्किल, वक्त जब मुश्किल है तो मैंने देखा ज़्यादा काम होता है। और आज भी ये है कि मोदी का जितना रिप्रेशन है और जितना वो चीज़ें रोकने की कोशिश कर रहा है, इस वक्त इप्टा पूरे हिंदुस्तान में एक यात्रा चला रहा है जिसका नाम है 2.5 आखर प्रेम का। तो वो जो 2.5 आखर प्रेम का, ये कबीर का लाइन है, आप लोग फैमिलियर होंगे जी। तो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मुस्लिम क्रिश्चियन यूनिटी, क्रिश्चियन दलित यूनिटी, उस पर वो काम कर रहा है। तो उन लोगों ने बहुत सारे गाने बनाए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे नाटक बनाए हैं, प्लेस बनाए हैं, दिखा रहे हैं उसको। हबीब तनवीर की बहुत सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी वो रिवाइव किया। बल्कि कल मेरी अपने बेटे से बात हो रही थी, वो इप्टा का मेंबर है, तो वो बता रहा था कि हम लोगों को 3 गाने सिखाए गए हबीब तनवीर साहब के, जो उन्होंने शायद 40s में लिखे थे। तो वो हम लोग अब आगे की यात्रा में गाते हुए जाएंगे। तो काम चल रहा है, प्लेस हो रहे हैं। मैं भी जब दिल्ली इप्टा की प्रेसिडेंट थी तो हम लोग स्ट्रीट प्लेस करते थे, वो आज तक प्लेस हो रहे हैं। सो मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं ये लोग, लेकिन काम भी चल रहा है। अब उस काम का असर कितना दिखाई देगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि काम का असर हम लोगों ने ये डेमोक्रेटिक सेटअप की वजह से सिर्फ पार्लियामेंट में या असेंबलीज में मौजूदगी से जोड़ लिया है। कितने आपके मेंबर्स हैं? अच्छा, आप लोग 62 हैं, मतलब जो पीक पीरियड था उसमें हम लोग 62 सीपीआई के मेंबर्स थे, तो अब हम लोग 4 हैं। सो ये दोनों हाउसेस मिला करके और दोनों पार्टीज मिला करके, सो उसको फौरन ये मान लिया जाता है कि भाई
पार्टी जो है वो कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है या सोच जो है वो सवाल पे है, लेकिन मेंबरशिप बढ़ी है दोनों पार्टीज की, जिसका मतलब है कि ज़रूरत बढ़ी है, या ये यूँ कहें कि ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई है। इसीलिए गरीबों की बात करने के लिए या रिप्रेशन की बात करने के लिए या ज़ोर जबर जो चल रहा है उस पर बात करने के लिए ज़रूरी है कि पार्टी मौजूद रहे, उसका कार्डर मौजूद रहे और वो मुस्तकिल बात करता रहे। बात करने के ज़रिए इक्का के थिएटर भी है, पार्टी के पेपर्स भी हैं, फिल्में भी हैं जो बन रही हैं छोटी मोटी, और जाहिर है प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन भी है। और ज़रूरत है, एक चीज़ और ज़रूरत है मुझे जी। अगर मैं पूछूं क्लासिकल डांस से भी आपका कोई ताल्लुक, जी। उसका तस्करा नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल करूँगी। क्लासिकल डांस से हाँ वाबस्तगी बचपन से थी, 10 साल की उम्र से 8 साल की उम्र से मैंने सीखना शुरू किया, फिर 15 साल की उम्र में बहुत सीरियसली लिया उसको कि भाई ये सिर्फ हफ्ते में 2-3 बार क्लास में चला जाना और फिर एनुअल डे पे परफॉर्म कर देना नहीं है। मैं सीरियसली परफॉर्म करना चाहती हूँ और ऐसी चीज़ें सीखना चाहती हूँ जो प्योर क्लासिकल हो और उसको फिर मैं प्योर क्लासिकल ढंग से पेश करूँ। फिर थोड़ा जब वक्त गुजरा तो आई थिंक आई वाज 22 साल की उम्र, मुझे लगा कि मैं वही चीज़ें दोहरा रही हूँ जो मेरे गुरु कर रहे थे, जो उनके गुरु कर रहे थे, जो उनके गुरु कर रहे थे, तो मैं वो करना चाहती थी उसको। आई वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम इट एंड आई डिड। वो गुरु उस वक्त नाराज़ हो गए बहुत ज़्यादा, और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत खुशी की शाम है जब सिद्दे हसन साहब दिल्ली में मौजूद थे, मैं परफॉर्म कर रही थी और उन्होंने परफॉर्मेंस के बाद आके मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा तुम कथक में फैज़ इस्तेमाल कर रही हो और मखदूम की शायरी इस्तेमाल कर रही हो, शाबाश। तो वो मेरे लिए जो सब लोग कह रहे थे कि ये शायरी इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो एक तरह से मुझे लेजिटिमेसी मिली। एक सवाल और, आपको फैज़ की शायरी पर रस करना मुश्किल लगा या मखदूम की शायरी पर रस करना मुश्किल लगा? नहीं, रोमांटिक शायरी दोनों के यहाँ मौजूद है और इनकलाबी शायरी दोनों के यहाँ मौजूद है। मखदूम के यहाँ एक सिर्फ आसानी थी कि मखदूम खुद बहुत अच्छा तरन्नुम में पढ़ते थे, और वो तरन्नुम जो था वो ऐसी बहुत घटिया सी रिकॉर्डिंग्स में और रेडियो की कुछ वो जो अच्छी रिकॉर्डिंग थी उसमें मौजूद था, तो वो मुझे बहुत सहारा मिला उसको अपने म्यूजिशियंस को सिखाने में। मैं आप बात भी कर रही थी नेक्स्ट जनरेशन, अच्छा वो आप लोग दोनों ने बहुत कुर्बत से बहुत ये तहरीक महसूस की है, देखा है अपने पेरेंट्स को, उसके साथ वो वही रंग पकड़ा और आगे बढ़े। इन्होंने अपने वालिद को जेल जाते देखा और उसका असर लिया, आपने वो सारी हिस्ट्री यू लिव दैट। अच्छा, और इसलिए बिल्कुल समझ में आता है कि आप दोनों की जो जुर्म है वो क्या है, वो क्यों है। मगर ये डिफेंस चली गई, आप लंदन चली गई, सो ये जो और जनरेशन है जो आपने अपने बच्चों का जिक्र भी अभी किया, तो वो उन तक क्या ये मुंतकिल उसी कुव्वत से हो रहा है या सिर्फ ये क्यूरियोसिटी है या उनके अम्मा का इंटरेस्ट है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे 2 बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है और फिर एक बेटा और बेटी ट्विंस हैं, तो 2 बेटियां हैं, एक बेटा। तो एक बेटा जो है और बड़ी बेटी वो बहुत पॉलिटिकल है, बल्कि बड़ी बेटी जो है उसको मुझे रोकते रहना पड़ता है। शी इज़ वेरी, वो बहुत पिट के आती है जलूसों से, बहुत आगे घुस जाती है, फिजिकली वो बहुत फिट है, उसने अपने आप को फिट रखा है कराटे वगैरह सीख के, तो वो जो बैरिकेडिंग पुलिस करती है लोहे की उसको वो कूद जाती है और हमेशा मार खाती है। जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, जब भूख हड़ताल हुई उसमें शी वॉज वन ऑफ द पीपल हु सैट डाउन। 17 दिन उसने भूख हड़ताल की। उस वक्त मैं कनाडा में थी, पार्टी की तरफ से भेजा गया था ऑन सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन इंडिया अंडर मोदी, तो मैं वहाँ हर बार कहती भी थी कि एक मिसाल ये भी है कि मेरी बेटी वहाँ बैठी हुई है। 17वें दिन उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तो ये वो बहुत पॉलिटिकल हैं, बेटे बहुत पॉलिटिकल हैं। बेटे थोड़े से, क्योंकि आर्ट्स की तरफ उनका रुझान है,
تو اس لیے وہ ایکٹا سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں اور اس کا کام زیادہ کرتے ہیں. ایک چیز جو بدلی ہے, یہ نہیں بدلا کہ ماں باپ سے کیا بچوں کو ملے گا, جو بدلا ہے وہ یہ بھوک ہڑتال میں نے بھی کی. چوتھے پانچویں دن وائس چانسلر آ جاتے تھے اور بہت محبت بہت پیار سے تھوڑا سا ڈپٹ کے تھوڑا سا یہ کر کے اے کیا ہے چلو چلو اٹھو بات کریں گے فیصلہ ہوگا, کچھ ساری باتیں نہیں مانی جائیں گی, کچھ باتیں مان دیں گے, چلو چلو کھانا بنواؤ بھائی ان لوگوں کے لیے شربت لاؤ, تو وہ ختم ہو جاتا تھا. اب یہ ہے کہ آج کی سرکار مر جانے دے گی, مر جانے دیا انہوں نے. گنگا کی کلیننگ پہ جو بیٹھے تھے نا انوائرمنٹلسٹ, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا وعدہ تھا کہ آپ گنگا صاف کریں گے تو آپ گنگا صاف نہیں کر رہے ہیں, میں بھوک ہڑتال پہ بیٹھی ڈائٹ. سو یہ فرق آیا ہے ہم لوگوں میں نہیں سرکار. یہ جو ہے معاف کیجیے گا, دونوں کی دونوں جو ہیں دونوں ایسے گھروں میں پیدا ہوئے جہاں ماں باپ دونوں کمیونسٹ پارٹی کے. یہ جو ہے ان کی اماں جو ہیں وہ ان کے ابا سے زیادہ جو ہے وہ تکڑی مارکسسٹ, اور وہ جو ہے وہ ان کا طریقہ یہی تھا جو اپنی بیٹی کے لیے بتا رہی ہیں کہ وہ مطلب جو ہے گھس جاتی تھی. وہ بہت ان کی وجہ سے جو ہے سب لوگوں کو بڑی اسٹرینگتھ ہوتی تھی. یہ حمزہ باجی جو ہیں وہ مطلب مزدور تحریک ہو, ٹیچرز کی تحریک ہو, اسٹوڈنٹس کی تحریک ہو, ان سب کے اندر وہ بہت فعال اور بہت ہی مطلب طاقتور شخصیت کے طور پر ہمارے موجود ہیں. اور ان کے نام سے جو ہم یہاں پر کرتے ہیں ایک سالانہ لیکچر, وہ بھی طے یہ سے ہوا ہے, بھائی صاحب نے مل کے طے کیا کہ 1 مارچ کو جو یہاں پر 60s میں مزدور وہ ہوا تھا اور اس کے اوپر فائرنگ اور لوگ, اس دن جو ہے ہم کیا جاتا ہے. ان کی پیدائش یا ان کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف جس دن مزدوروں کے وہ ہوا تھا اس دن ہم ان کا لیکچر کرتے ہیں. اس میں ایک بات چھوٹی سی بات میں ایڈ کر دوں کہ میرے میاں بھی کمیونسٹ تھے اور پارٹی کارڈ ہولڈر تھے. اس کا اثر پڑا دونوں بچوں پہ, لیکن ہم یہ نہ بھولیں کہ سجاد ظہیر کے ماں باپ کمیونسٹ نہیں تھے. سو اس لیے جی یہ انفلوئنسز کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کیوں وہ اپنی طرف لوگوں کو کھینچتے ہیں, یہ میرے خیال سے ہم لوگ سب کو کبھی سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور اس کو آپ کبھی پارلیمنٹ میں انتخاب کے ذریعے یہاں ریزرو سیٹ وغیرہ کے ذریعے اسمبلی میں پہنچے؟ نہیں, میری کبھی تمنا نہیں تھی. میں بہت اچھے جاب میں تھی سارک میں, جو ہم لوگ 7 ملکوں کا بعد میں 8 ملکوں کا افغانستان بھی اس میں شامل ہو گیا. میں اس کی کلچرل کوآرڈینیٹر تھی اور بہت خواب لے کے گئی تھی کہ وہ پاکستان اور ہندوستان کی دوستی تو میں یوں کرواتی ہوں. اب کوئی مسئلہ نہیں رہے گا کیونکہ میں یہاں موجود ہوں اور میں نفرت نہیں کرتی نہ پاکستان سے نہ ہندوستان سے, تو میں کیوں نہیں کروا پاؤں گی. وہ الگ یہ ہے, لیکن میں وہی کرتی تھی اور میں کتابیں لکھتی ہوں. میں پارلیمنٹیرین یا اسمبلی ممبر ہونے کا میرا کبھی خواب نہ تھا. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ایک سوال پوچھوں گا جو عامر نے شروع کیا تھا اسی کے تسلسل میں, جی کہ مطلب بہت کم لوگ رہ گئے جو آج بھی اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے ہیں یہاں, میں پاکستان کی بات. جی اگر ان کا تعلق اگر نوجوان نسل کا یا اس سے تھوڑا سا, تو وہ یہ چھپاتے ہیں کہ ان کے والدین کا تعلق کمیونسٹ پارٹی یا کمیونسٹ موومنٹ کے ساتھ. اس میں ہمارے یہاں پر جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا رول جو ہے وہ تو جو ٹائرنی ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہے, مطلب آپ کے ہندوستان میں کبھی بھی نہیں ہوتی, اور اگر آپ یہ تقسیم نہ کرواتی تو ہم شاید زیادہ کمیونسٹ پارٹی مستحکم ہوتی ہے, مستحکم ہوتے بیچارے. مجھے کہنا ہے یہ آپ سے کہ یہاں پر جو ہے وہ این جی اوز نے آ کر جو ہے بڑا بہت شاندار مستقبل لوگوں کا بنایا. زیادہ تر کمیونسٹوں کا کاریہ جو ہے وہ اس میں چلا گیا. پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے اندر ہیں, وہ ارندھتی رائے کو نہیں پڑھتے, وہ این جی او بناتے ہیں اور این جی او میں کام کرتے ہیں, اور این جی او جو فنڈ آتے ہیں اس کے حساب سے پروجیکٹ کو چلاتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں کہ ہم کمیونسٹ ہیں یا ہمارا کوئی تعلق ہے.
तो क्या ये कैफियत वहाँ पर भी है? क्योंकि एक दफ़ा मेरी मुलाकात जो है वो हुई थी दिल्ली में हबीब तनवीर साहब से जी। उन्होंने मुझसे कहा था कि यार कोई NGO बना। उस वक्त मैंने उनसे थोड़ी सी बहस की थी कि NGO जो है वो उसके बनाने का मकसद क्या होता है। अगर 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 इनकलाब के लिए आपको काम करना है तो फिर आप NGO के साथ काम नहीं कर सकते। मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है। वो इसलिए और मजबूत हो जाता है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो मतलब नौजवान कैडर भी जो है वो मतलब कोशिश उनकी होती है कि वो NGO में उसको ले जाएं, फिर 9 to 5 जॉब करते हैं और बाकी फिर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो कम्युनिज्म के लिए जो एक वॉलंटियर के तौर पर ज़िंदगी को गुजारना होता है और जहनी तौर पर अपने आप को होल टाइमर समझना, अगर आप होल टाइमर नहीं भी हैं तब भी जहनी तौर पर आप एक होल टाइमर होने चाहिए। NGO से आके वो चीज़ ख़त्म करती है और लिबरलिज्म जो है वो उसका शिकार है ज़्यादातर लोग कि वो अपने आप को कहते हुए भी शर्माते हैं। तो क्या ये कैफियत, लंबी बात कर दी मैंने, क्या कैफियत हिंदुस्तान में मौजूद है? हिंदुस्तान में मौजूद है कुछ हद तक, लेकिन मैं पूरी तरह से उन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी कि उसी वजह से कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है वो कमज़ोर पड़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मार्क्सिज्म पर भी कुछ हद तक हम लोगों को रीथिंक करने की ज़रूरत है और ये समझना है कि भाई जो 200 साल पहले की चीज़ थी वो आज पूरी तरह से हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकती। मैं दो चीज़ों की बात खास करके करूँगी। एक ये कि मार्क्सिज्म कहीं पे ग्लोबलाइजेशन का जिक्र नहीं करता, लेकिन आप ग्लोबलाइजेशन को आज के दौर में यू कैन नॉट राइट इट ऑफ। He will not be able to function as a doctor if he is not able to get instruments from America, Norway, Sweden, पता नहीं कहाँ से। शायद सर्जन जो है, जितने भी मेरे सर्जन दोस्त हैं वो बताते हैं कि हम लोग कंसल्ट करते हैं अपने डॉक्टर दोस्तों को दूसरी जगह। सो वो और हर चीज़ में ग्लोबलाइजेशन यू कैन नॉट जस्ट विश अवे। जो हमें प्रिकॉशन मार्क्सिस्ट को लेनी चाहिए थी और अभी भी लेना चाहिए हम लोगों को, वो ये कि ग्लोबलाइजेशन के तहत हम अपने वर्कर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे हम लेबर मूवमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। हुआ ये है, कम से कम मैं हिंदुस्तान के बारे में बात कर सकती हूँ कि जिस वक्त MNCs ने आना शुरू किया तो ये जो बुर्जुआ सरकारें हैं ये तो मतलब पूरे हाथ खोल के उनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गए, बाजू फैला करके कि आइए आइए। और उसमें उन लोगों ने ये सोच करके कि ठीक है इन मुल्कों में स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड लेबर मौजूद है, उसके साथ साथ हमें इतने टैक्स डिडक्शंस मिल रहे हैं, हमें इतने फायदे मिल रहे हैं बिजली के, स्पेस के, इसके, तो चलो यहाँ पर चलते हैं। उन्होंने एग्जामिन किया कि पाकिस्तान में उनको सस्ता लेबर मिल रहा है या इंडिया में मिल रहा है या नेपाल में मिल रहा है, किस लेवल पे उनके प्रोडक्शन यूनिट को सपोर्ट ज़्यादा कौन सा मुल्क कर रहा है, वो वहाँ पर उस चीज़ की यूनिट्स लगाने लगे। और अपने आप में ये चीज़ एक तरह की मैं कहूँगी कि लेबर शॉपिंग में तब्दील हुई। इसको हम लोगों ने चेक नहीं किया किसी भी तरह से, कोई ट्रेड यूनियन लीडर्स बैठे नहीं कि हम लोग इस चीज़ को चेक करें और हम सार्क मुल्कों में ही कम से कम हम ये तो तय करें कि ठीक है जो मिनिमम वेज एक मुल्क में है वही दूसरे मुल्क में मिलेगी, so that they don't have this opportunity to go labor shopping। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, मार्क्सिज्म की जो बहुत बड़ी कमी रह गई, आपने इस बात की बात की, क्यों हम लोग सही ढंग से फेमिनिज्म डिस्कस नहीं करते। हम लोगों ने क्यों अमेरिकी डेफिनेशन मान लिया है कि फेमिनिज्म वो है जो औरतें कहेंगी अपने मियाँ से हम तुम्हारे लिए खाना नहीं पकाएंगे, हम तुम्हारी शर्ट्स नहीं धोएंगे। That is the American definition of feminism. That is not feminism. Today, what we need is women in negotiations. बताइए, आप फिलिस्तीन की बात कर रहे थे, जब फिलिस्तीन की बात आती है तो कितने मर्द बैठे होते हैं और कितनी औरतें बैठी होती हैं जो नेगोशिएशन टेबल पे बात करती हैं। क्यों हम लोग डिमांड नहीं कर रहे कि हमें 50% रिप्रेजेंटेशन चाहिए नेगोशिएशंस में। हम लड़ाई आप कर चुके भाई, आपसे अगर पीस लाई जा सकती होती मर्दों से तो आप ला चुके होते, आपने लड़ाई क्यों लड़ी होती? तो हमें पीस तो लाने दीजिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां तो रखिए कम से कम। सो वी डिस्कस feminism with a Marxist point of view. We don't reject feminism. मैं इस वक्त डिबेट नहीं करूँगा, लेकिन ये कि मार्क्सिज्म की और की बुनियाद ग्लोबलाइजेशन की
जब वो उसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि वर्कर्स द वर्ल्ड यूनाइट, तो ये ग्लोबलाइजेशन जो है इसकी टर्म इस टर्म के तहत जो है सबसे पहले कम्युनिज्म में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर आई थी। इन्होंने दूसरी टर्म इस्तेमाल कर ली है ग्लोबलाइजेशन की, लेकिन हमारी ग्लोबलाइजेशन जो थी वो थी मजदूरों की बुनियाद के ऊपर सारी दुनिया। अब हम कर पाए नहीं कर पाए ये एक अलहदा बात है, लेकिन ये बात कहना कि ग्लोबलाइजेशन की टर्म नहीं, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। एक तो ये होता है, दूसरी बात जो है वो ये है कि आपने जितना वो देखा है कि मुझे ये बताएं, दो जो पार्टियाँ हैं आपके यहाँ, उन दोनों पार्टियों के मतलब क्या अब क्या इख्तलाफात हैं और क्यों एक हो पा रही हैं और क्या एक हो पाएंगी? क्योंकि आप तो एक कम्युनिस्ट पार्टी से ना। जी बिल्कुल, मैं सीपीआई की मेंबर हूँ और कम्युनिस्ट पार्टी रही हमारे हिसाब से, हालांकि रही या न रही वो एक अलग बात है। और वो जो प्रो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी हो गई एक तरह से, है या नहीं है वो एक अलग बात है। वो तो अपने आप को नहीं, जो इलेक्शन में उतर रही है वो 3 है, सीपीआई एमएलपी है, और जो इलेक्शंस नहीं लड़ रही है वो भी और 3 और पीपल्स वॉर ग्रुप ये मौजूद है। सो मगर उनको ग्रुप्स उनकी मौजूदगी या उनके फैसले सभी के जितने भी हैं 6-7, उस पर बजाय ये सोचने के कि विल दे एवर कम टुगेदर, एक पहल हुई है पिछले 4 साल पहले कि हम लोग एक मिनिमम प्रोग्राम के साथ आ जाए। सो मैक्सिमम यूनिटी, मिनिमम प्रोग्राम, ताकि हम में इख्तलाफ ना रहे, दूसरी चीजें हम अपनी तरह से करते रहें, लेकिन एक मिनिमम प्रोग्राम हो जिसमें एक प्रोग्राम ये भी है कि हम इलेक्शन साथ लड़ेंगे, एक प्रोग्राम ये भी है कि हम कम्युनलिज्म के खिलाफ एक साथ लड़ेंगे। सो जिसका नतीजा ये हुआ है कि टर्मे सीपीएम के एक्टर्स आते हैं और प्लेस करते हैं, क्योंकि वो प्लेस जो हैं वो क्या करें, तासुब के खिलाफ हैं और जो झगड़े हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं उसके खिलाफ है, और वो लोग उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, वो स्क्रिप्ट मौजूद है। और ये 2 चीज़ें हैं बुनियादी जिन पर ये है। उसके बाद ये है कि महंगाई के खिलाफ जो लड़ाई है हम साथ लड़ेंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर ये हुआ है। जहाँ तक रही पार्टी एक होने की, वो एक बहुत ही थोड़ा सा मसला हो गया। मेरी बर्धन साहब से भी बात हुई थी और हरकिशन सिंह सुरजीत भी उस वक्त हयात थे, उनसे बात हुई थी और उन्होंने एक बहुत मज़ेदार बात कही, नहीं मज़ेदार नहीं, बहुत दुख देने वाली मुझे बात कही कि कैसे फिर जनरल सेक्रेटरी कौन बनेगा, डिप्टी सेक्रेटरी कौन बनेगा, एग्जीक्यूटिव में कौन होगा। तो उसका मेरे ख्याल से मुझसे अगर पूछा जाए, नहीं पूछा जाएगा मुझसे, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो बहुत सहज तरीका है कि रोटेशन ही कर लीजिए, है ना। 20-25 साल, 26 साल, 50 साल में इस वक्त की जो लीडरशिप है वो नहीं रहेगी, और जो नए आएंगे वो फिर यूनाइटेड पार्टी के ही मेंबर्स होंगे, तो उनमें से चुनना आपको मुश्किल नहीं होगा। अभी आप ये कर लीजिए कि भाई एक बार जनरल सेक्रेटरी इस पार्टी का बन जाए, एक बार इस पार्टी का बन जाए। उसके लिए नेगोशिएशन टेबल पे, उसके लिए जी बिल्कुल, उसके लिए नेगोशिएशन टेबल पर 50% वुमेन बैठना चाहिए। ये अप्रोच वहीं से आ सकती है। जी उसके बाद सर मुझे भी इजाज़त दीजिए। हाँ जरूर। अच्छा असला पहले तो आपको सलाम पेश करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दूसरी बात ये कि आप हमारे करीबी मुल्क भारत से आई हैं। अच्छा वो मुझे खुशी है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह ये है कि मेरे खालजाद भाई भी और ब्रदर-इन-लॉ भी थे। वो जब पहली मरतबा परवेज़ मुशर्रफ के बाद में इंडिया गए बिज़नेस टूर पर, उन्होंने वापस आकर मेरी सास से कहा कि माँ, इंडिया के लोग बहुत नरम दिल होते हैं, हम इतने सख्त दिल क्यों हैं। तो ये बात तो एक हकीकत है, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आपको मैंने जितना हम्बल देखा और जितनी कॉन्फिडेंस से आपने तमाम जुमलों की अदायगी की और बहुत अच्छी तरह से समझाया, तो वाकई मुझे ये होता है कि आपके इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा एजुकेशन है।
तो ये है, और हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरी आमतौर पर अहले इल्म से गुफ्तगू होती रहती है जो ज़्यादातर जज्बाती हो जाती हैं। तो क्यों हम ऐसे होते हैं मेरी समझ में नहीं आया। मिसाल के तौर पर मैं अपने दोस्त का जिक्र करूँगा। कल इन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि ये बताइए कि कुरान पर, मैं कुरान का तालिब इल्म हूँ, तलमीज़ुल कुरान हूँ, तो उन्होंने कहा कि कुरान पर इतना ज़्यादा लिखा गया है, अब लिखने की ज़रूरत क्या है। तो ये एक अजीब सा सवाल है, क्योंकि कुरान पर तो खैर अदब पर लिखा जाता है, तो कुरान पे क्यों नहीं लिखा जाएगा। लेकिन उन्होंने एक ये बात कही कि मतलब ये हमारे यहाँ ये थोड़ा सा है, हाइपर हो जाते हैं हमारे यहाँ, हर चीज़ पे हम हाइपर टेंशन का वो मरीज़ हम ज़्यादा हैं। अच्छा, ये तो खैर एक अलग बात की, ज़िमनी सी बात की मैंने कह थी, लेकिन आपसे मेरे सवाल हैं कुछ। एक तो सवाल मेरा ये है कि मैं जब नहीं, पहले तो मैं अपनी वजाहत कर दूँ कि मैट्रिक में जब मैं था ना, तो यहाँ हाई कोर्ट के पास एक कैबिन था जहाँ पर कम्युनिस्ट की किताबें मिला करती थी, जहाँ पर बम धमाका भी हमारे यहाँ हुआ था। तो मैं हैदराबाद से, कराची से कम्युनिस्ट की किताबें लेने आता था। ये मेरे स्कूल का वो वाक़या है। तो पढ़ता था मैं, कुछ बहुत ज़्यादा, लेकिन कम्युनिस्ट में नहीं हुआ और ना मैं, लेकिन शौक़ था मुझे, वो पढ़ता था। आपसे मुझे सवाल ये है कि कम्युनिज्म में ये बात तो हमने, ये आपने जो कहा ना कि देखिए बहुत सारी बातें आपने बिल्कुल खुलकर साफ साफ कही हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बड़ी वजाहत से आपने बयान किया है। एक तो ये कि औरत का जो डिसीजन मेकिंग का जो किरदार है वो क्यों नहीं है, ठीक है ना, ये कहीं भी नहीं है। आपने अमेरिका की मिसाल दी कि वहाँ पर भी क्यों नहीं है, तो ये हकीकत है। कुरान का एक आयत है जो मैं इस पर लेकर आऊँगा, उसने कहा कि मर्द गवाही देगा एक, और अगर औरत होगी तो दो। अच्छा, उसका ये लेते हैं कि जी औरत कमज़ोर होती है, ये है। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि औरत को सबकत दी गई है कि अगर कहीं पर ये डिसीजन मेकिंग है ना, कोर्ट में गवाही देना, ये तो एक मतलब ये कि बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट में अगर एक कानून के अंदर कोर्ट में अगर इतनी अहमियत औरत को दी गई है, तो हमारे यहाँ असम्बली में या दूसरी जगहों पर औरतों को डिसीजन मेकिंग के लिए क्यों नहीं किया जाता, ये आपका वो वैलिड है वो। अच्छा, दूसरी बात मेरा आपसे ये एक बात ये कहनी थी मुझे कि वेजेस का जो सिस्टम है वो कम्युनिस्ट का नहीं है, वो तो सरमायादाराना निज़ाम का है। वेजेस का जो सिस्टम है वो तो कम्युनिस्ट का नहीं है, वो तो सरमायादाराना है। कम्युनिस्ट ने वेजेस सिस्टम को ख़त्म क्यों नहीं किया, नंबर एक सवाल। नंबर दो सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि जो लेबर का ज़ाब्ता अखलाक है, कम्युनिज्म की किताबें मैंने थोड़ी सी पढ़ी हैं, लेकिन कम्युनिज्म ने लेबर को इख्तियार तो दिए कि वो गिरबान पकड़े उनका जिन्होंने उनका इस्तेसाल किया है, उनके माशरे का इस्तेसाल किया है, लेकिन लेबर को जहनी तौर पर आगे नहीं किया। यानी लेबर को जहनी मतलब अखलाकी तौर पर उसने उन लोगों के अखलाक के बराबर नहीं किया जो वाकई अखलाक का एक बुलंद मकाम रखते थे। तो ये कम्युनिज्म ने ऐसा तो नहीं किया, मैंने ना पढ़ा है, ना देखा है, ना मैंने सुना है। जवाब जी, तो पहले वाले से शुरुआत करें कि कुरान पर और लिखने की क्या ज़रूरत है। तो इश्क पे भी बहुत लिखा जा चुका है, तो इश्क पे भी आज भी लिखा जा रहा है। और हम लोग हिंदुस्तान में जो नवरस पढ़ते हैं, 9 इमोशंस, उन सब 9 इमोशंस पे बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है। और फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिन पर लिखा जा रहा है। तो लिखा जितना जा रहा है, या जितनी मेरे ख्याल से लिखना जो है वो अपने आप में बहस का एक सिलसिला है, मुबाहिसा शुरू करने का एक सिलसिला है, और उससे किसी को इतराज़ मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, मेरी अपनी निजी राय। दूसरी बात ये है कि औरत को जो हक़ देने की बात है, देखिए चाहे कुरान ने ये कहा हो कि 2 औरतों का एक वोट माना जाएगा, ही हो, आपने लीगली इस वक्त औरत को वोट देने के लिए बराबर कर दिया। 1 वोट 1 पर्सन आपके मुल्क में भी है और डेमोक्रेसी में है, ठीक है। और उसकी लड़ाई यहाँ पर चाहे ना लड़ी गई हो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में, लेकिन उसकी लड़ाई इंग्लैंड में और अमेरिका में बहुत लड़ी गई। यहाँ तक कि औरतों ने अपने आप को घोड़े गाड़ी के सामने डाल दिया और शहीद हुई, मारी गई कि हमें वोटिंग राइट्स चाहिए। तो वहाँ वोटिंग राइट्स नहीं थी, उन्होंने लड़ झगड़ के अपनी वोटिंग राइट्स ली हैं, आज वोटिंग राइट्स बराबर है। फिर रिप्रेजेंटेशन बराबर क्यों नहीं होगा हर जगह, चाहे वो कोर्ट हो,
चाहे वो असेंबलीज हों, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो नेगोशिएशंस हों। तो वो मेरे ख्याल से वो डिमांड है और फेमिनिज्म की इस वक्त वो अहम डिमांड होनी चाहिए। तीसरी बात क्या थी? सॉरी, हाँ वेजेस पे। वेजेस देखिए ये दो बातें हैं, एक कॉमरेड ने भी बात की और एक आप भी, मैं दोनों को मिला करके जवाब दे रही हूँ कि वेजेस और कम्युनिस्ट मूवमेंट चला रहना ये एक जंप की बात नहीं है, ये स्लोली होता है। अभी तक हमने ये पाया नहीं है कि हमने कम्युनिस्ट सरकारें और लेफ्ट सरकारें हर मुल्क में कायम कर दी हूँ। जब तक ये कायम नहीं हुआ है तब तक जो बुर्जुआ सिस्टम है उसमें वेजेस है, उसमें हमें जस्टिस की डिमांड रखते रहना है। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते कि वही जब इनकलाब होगा तब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और तब सब बराबर हो जाएंगे, तब वर्कर्स को भी उनकी राइट्स मिल जाएंगी और सब ये हो जाएगा। हमें एज अ गुड कम्युनिस्ट मैं ऐसा समझती हूँ, मुझे अपने चारों तरफ काम ढूंढते रहना है। मैं क्या छोटा सा ठीक कर सकती हूँ, मैं किस चीज़ पे बात शुरू कर सकती हूँ, मैं किन दो लोगों से ये डिस्कस कर सकती हूँ। मुझे मान लीजिए उर्दू शायरी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, मैं किससे पूछ सकती हूँ? तो मुझे अपनी और अपने समाज की बेहतरी के लिए मुस्तकिल काम करते रहना है अगर मैं अपने आप को लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट समझती हूँ। वहीं पर यही बात आ जाती है कि भाई एनजीओस क्यों इस तरह से मशरूमिंग हुई है एनजीओस की। उसके साथ भी ये बात है कि जब पार्टीज बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, जब पार्टीज बाकायदा काम नहीं देती, तो लोग खुद काम तलाश करते हैं। और मेरे ख्याल से उनका काम तलाश करना गलत नहीं है, उनको इस तरह से उनको सपोर्ट ले लेना और फिर अपने आप को लेफ्ट मूवमेंट से काट लेना, वो मेरे ख्याल से गलत है। बहुत शुक्रिया। इससे रिलेटेड कलीम दुरानी साहब ने जो कहा, पाकिस्तान में जो आप शिकवा जो आप कर रहे थे, आई थिंक वो उसकी एक झलक वहाँ से भी नजर आई कि हमारे यहाँ रिजेक्शन का जो अमल है ना, इंसान को उसके अमल के बाद रिजेक्ट करने का, उसने तहरीकों को बहुत कमज़ोर किया है और शख्सियत परस्ती ने तहरीकों को बहुत कमज़ोर किया है। तो मेरे नज़दीक अगर आप लेफ्ट की पूरी तहरीक उठाकर देखें और उसके हालात देख लें और उसकी वजूहात पीछे चले जाएं, तो शख्सियत परस्ती एक बहुत बड़ी वजह नज़र आएगी जिसकी वजह से तहरीकें कमज़ोर हुई और तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। तो मेरे ख्याल में जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो कि मैं ख़ुद तो डॉक्टर हूँ और मैं जो बुनियादी तनख्वाह है और इस वक्त हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में बुनियादी तनख्वाह के हालात हैं उस बारे में बड़ी एफर्ट करके देख चुकी हूँ। मुझे वो लोग नहीं मिलते जो मेरे साथ खड़े होकर से कोर्ट ऑफ लॉ तक लेके जा सके। मैंने बड़ी सीरियस कोशिश की थी कि ऐसा हो सके कि जब हम ये कह सकें कि अगर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो एसेंशियल सर्विस होने की वजह से अपना हक नहीं खो देते वहाँ पे काम करने वाले लोग, और उनको कम से कम तनख्वाह पे मुलाजिम करना प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का हक नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाई। क्यों? इसलिए कि मेरे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए हमें गौर करना पड़ेगा कि जिस लेफ्टिस्ट तहरीक की हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं वो लोगों से जुड़ने का अमल कितना शदीद रखती है, वो किस तरह लोगों को अपने साथ लेके चलने का अमल करती है, या वो लोगों को उनके एनजीओ की नौकरी की वजह से रिजेक्ट कर देती है। सॉरी फॉर दैट। आप ठहरेंगी? मुझे बहुत बेचैनी है, आपको कोई नुकसान ना हो जाए। नहीं, मैं बस 5 मिनट और बोलूँगी। मैं एक बात का राहत भाई की बात का जवाब देना चाहूँगी। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, सिर्फ बात वर्कर्स की हो रही है। ग्लोबलाइजेशन जो इस वक्त है वो इंडस्ट्रियल भी है, फाइनेंशियल भी है और हर तरह से एग्रीकल्चरल है। यहाँ तक है कि हमें बताया जा रहा है कि कौन से बीज हमारे खेतों में बोए जाएंगे, जिसकी वजह से इतना बड़ा फार्मर्स मूवमेंट अभी हुआ, कामयाब फार्मर्स मूवमेंट। वेरी प्राउड ऑफ दैट मूवमेंट इन इंडिया। सो ग्लोबलाइजेशन की वो डेफिनेशन मार्क्स के यहाँ नहीं मिलती है। हाँ, ये वाली अच्छा, हिंदुस्तान में तर्की पसंद तहरीक के हवाले से, अदब के हवाले से क्या पोजीशन है? तरक्की पसंद मुसन्नफीन की बहुत अच्छी हालत नहीं है। अगर खास करके अगर मैं इब्टा से उसको बरक्स रखूँ
تو رائٹرز دیکھیے ایک چیز ہے کہ آپ کو بلا کون رہا ہے، یہ ایک بہت اہمیت رکھتی ہے چیز. آپ کی کتنی کتابیں ہیں، اس بات کو بھولے نہیں کہ جس وقت سجاد ظہیر قائم کر رہے ہیں، قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر جگہ جا کے بات کر رہے ہیں 35 اور شروع 36 میں، تو اس وقت انہوں نے 2 کتابیں لکھ لی ہیں اور دونوں کتابیں کامیاب ہوئی ہیں. ایک انگارے تو بین ہوئی، لندن کی ایک رات جو ہے وہ بہت کامیاب ناول اور اس طرح سے جج کی جا رہی ہے کہ یہ شروعاتی اردو کی ناول ہے. اٹس ناٹ ریئلی اے ناولٹ بٹ پھر بھی تو اور پھر سجاد ظہیر اس سے مطمئن نہیں ہے کہ میں بلاؤں گا، وہ پریم چند کو پکڑ کے لاتے ہیں اور ان کی سرپرستی میں یہ انجمن قائم ہوتی ہے. We need big writers to be with the movement, to keep the movement going. اور وہ ترقی پسند تحریک، میں ہندوستان کی صرف بات کر سکتی ہوں، وہ اس وقت کر نہیں رہی. بڑے رائٹرز کو وہ اپنے ساتھ انوالو نہیں کر پا رہی. بڑے رائٹرز سے کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا سا خطرہ محسوس کر رہی ہے. اچھا یہ کمیونسٹ ایک صاحب کا سوال تھا آپ کا. جی جی بالکل. میرے خیال میں 2 ینگ بالکل ریلیٹیولی ینگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے بڑے ہیں یہ 2 عمر میں، لیکن سوال ان کی طرف سے آنے چاہیے. میرے خیال میں بھی اسی طرح سے آپ کے سوال میرا بیک گراؤنڈ کمیونسٹ پارٹی کا نہیں ہے، نہ مجھے کہیں بچپن سے یا لڑکپن سے کوئی اس طرح کا ماحول ملا. کچھ پڑھ لکھ کر جو ہے وہ مارکس پسند آیا ہے، لیفٹسٹ روی پسند آیا، تو اس کی وجہ سے اس طرف پر لکھنا. اور 2018 سے کچھ یونیورسٹیز میں پڑھانا شروع کیا تو کیونکہ وہ پسند تھا تو فلاسفی اور سوشل سائنس پڑھا رہا تھا، تو اس میں یہ چیزیں پڑھا رہا تھا. لیکن جو ماحول اکیڈمیا کا بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنلی بھی کچھ عرصے تک یہ دیکھ رہے تھے کہ نیوٹرل پوزیشن لینی ہے اور بس جو مواد ہے بس وہ پڑھانا ہے. آرٹسٹ وغیرہ تو پھر بھی کچھ پوزیشن لے لیتے ہیں لیکن اکیڈمیا کے اندر یہ توقع کی جاتی ہے، ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نیوٹرل ہیں اور آپ اکیڈمیکلی انالائز کریں کہ چیزوں کو اور آگے بس پڑھا دیں. تو مجھے خود اندر سے یہ ہوتی ہے تو مطلب کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پوزیشن ہے اگر آپ ایک چیز کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ کو بھلے بتا دیں انالائز کر کے، لیکن ایک پوزیشن لیں اور اس کو آگے بتائیں کہ یہ صحیح ہے. اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کمیونسٹ پارٹی کا اکیڈمیا کے اندر کیا پوزیشن، کیا موجودگی رہی، انہوں نے اس کو کس طرح سے لے کے چلیں اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایک وقت میں لٹریچر ہسٹری میں کہوں کہ not the life sciences but all other اس میں مارکسسٹ اور مارکسسٹ نظریہ بہت آگے تھا. تو یعنی جب آپ اینالائز کر رہے ہیں تو آپ کا طریقہ جو ہے وہ مارکسسٹ ہوگا، چاہے وہ کتاب مارکسزم کی ہے یا نہیں ہے. سو دیٹ واز اے ویری اسٹرانگ پیریڈ. اور اس پیریڈ میں ابھی ہم لوگ عرفان حبیب صاحب کی بات کر رہے تھے، ڈاکٹر عرفان، پروفیسر عرفان حبیب، ان کی بہت کتابیں آئیں، مبارک علی صاحب کی بہت کتابیں آئیں، اس طرح کے فاصلہ ملا تھا پر اینڈ دیر سو مینی آئی مین دیر انیومریبل. سو ان کی کتابیں آتی رہیں، ان کی انالیسس آتی رہی اور انہوں نے کسی وقت بھی یہ نہیں سوچا کہ صاحب ہمیں تو مڈل میں رہنا ہے، ہمیں تو اپنے آپ کو کاؤنٹ، وہ دے ور willing to be counted on the left side, they were not ashamed of it. اس کے بعد یہ چیز یہ ہوئی ہے جب سے میں کوئی امریکہ کے خلاف نہیں ہوں، ویسے ہوں، لیکن امریکن سوچ جو ہے اس نے اس چیز کو بہت انفلوئنس کیا کہ اکیڈمکس should be always neutral and we should not take sides, should not اور اگر آپ ایک سائڈ لے رہے ہیں تو پھر آپ کو دوسری سائڈ بھی لینی ہے. سو وہ اس سے میں سمجھتی ہوں کہ اکیڈمکس کا بہت نقصان ہوا ہے، کیونکہ جب آپ سیدھے طریقے سے ایک رخ اپناتے ہیں تو اسی کے ساتھ دوسری طرف سے دوسرا رخ آئے، ویری گڈ، بالکل. لیکن اسی میں آپ گول مال کرتے رہیں کہ ہاں جی یہ بھی اور یہ بھی اور پھر وہ بھی اور یوں بھی، وہ سوائے اس کے کہ وہ ایک جارگن بن جائے اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے اس کو بالکل 100% تو آپ نہیں اوائڈ کر سکتے،
लेकिन उसमें शायद देखते रहने की ज़रूरत है कि कहाँ वो बैलेंस जो है जो रखा जा रहा है वो वाकई एक ऐसे दिमाग से आ रहा है जो कि बैलेंस में चीज़ें देख रहा है या ये कि ये बैलेंस थोपा गया है. So that I have questions. May I ask a question? Yes. My name is Nawaz Rahim. Thank you very much for inviting us. Basically, my name is Nawaz Rahim. मैं भी सोशल एक्टिविस्ट ही हूँ और HRCP का ही हूँ. मगर अभी 2-3 साल से हम लोगों ने जो ये कुछ लोग बाहर पढ़ने चले गए थे जिसमें मैं भी था. लेफ्ट को पढ़ा, कम्युनिज्म को पढ़ा, USSR को डाउनफॉल देखा, पढ़ाई भी की, मोटिवेशन पहले ही कर रहे थे. तो अभी एशिया कम्युनिज्म बना है. एशिया कम्युनिज्म मैं पाकिस्तान का उसका फाउंडर और 7 ज़बानों में इसकी वेबसाइट है. इसमें तामिल भी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है. और अभी 26 नवंबर को एशिया कम्युनिज्म के तहत ये 3rd इंतफादा फलस्तीन के लिए हुई थी. तो ला मार्क्स वालों ने इसको किया था. ला मार्क्स है. ये एक अच्छा नेटवर्क है. मेरा सिंपल सवाल ये है कि क्या अभी भी जैसे पाकिस्तान जब बना था तो CP कम्युनिस्ट पार्टी आई थी वजूद में, उसके बाद लिंक था बाकायदा इंडिया वालों से. आपको ये भी पता है कि क्या किस तरह लिंक है. तो अभी भी हम लोग लगे हुए हैं. तो इंडिया में हमारे भी दोस्त हैं, बांग्लादेश में भी हैं, श्रीलंका में भी हैं. वो CPI के बंदे हैं मगर वो इतने नाराज़ हैं वो बात ही नहीं करते. अब मैंने जब आपका बताया कि ये प्रोग्राम आ रहा है तो हालांकि मैं बीमार हूँ, मैं बड़ी मुश्किल था. 2 बार फ़ोन भी किया, मैं ऑफिस भूल गया था क्योंकि रहता यही हूँ. तो वो पूछा था कि क्या अभी रिलेशन है कि पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी है बनी हुई. एक इमदाद सानी साहब है, एक जमीन मलिक साहब है, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी को पाकिस्तान चला रहे हैं और साथ साथ NGOs भी चला रहे हैं. जमीन मलिक साहब की बात कर रहा हूँ, हमारे ग्रुप में भी है, हमारा सीनियर है. तो ये इमदाद साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बिल्कुल ही उनका लेक्चर भी मैंने फॉरवर्ड किया था फिर बड़ा अच्छा नशा की डाउनफॉल. सिर्फ ये पूछा था सिंपल कि मैडम जी ये बताएं कि कोई रिलेशन है क्योंकि आप CPI को रिजल्ट हैं या उनके साथ काम कर रही हैं. देखिए रिलेशन तो हर जगह जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ज़रूर रखना चाहेगी और रखती है. लेकिन अगर ये सोचा जा रहा है, मुझसे 2-3 लोगों ने ये कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी लाइन दे पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी को, तो वो नहीं देंगे और वो चाहते भी नहीं. उस पर होना भी नहीं चाहिए. फिर एक दफ़ा हो चुका है क्योंकि वो अपनी राह ज़ाहिर तलाश करनी है और उसमें सोच के लेवल पर या स्टडी सर्कल्स के लेवल पर काम हो सकता है. अब तो इंटरनेट मौजूद है तो जूम पर अगर ये करा जाए या और भी प्लेटफॉर्म्स स्ट्रीम या हम बताए देते हैं. इंडिया की दोनों कम्युनिस्ट पार्टियाँ जो हैं उनका रिलेशन है हमारे इमदाद वाली कम्युनिस्ट पार्टी से, दोनों पार्टियों. इसलिए कि वो दोनों पार्टियाँ एक सवाल रह गया है, वो अगर छोटा सा सवाल है बाद में 1 मिनट मैं ये बता दूँ वाज़ेह किसी पार्टी से नहीं, उनका किसी दूसरी पार्टी से, पाकिस्तान की किसी दूसरी पार्टी से उन दोनों का ताल्लुक नहीं. और उनकी वजह जो है वो ये है कि वो पहले दोनों एक कम्युनिस्ट पार्टी थी तो पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी जो है उससे उनका रिलेशनशिप कायम हो गया. तो अलग हुई तो भी उन्हीं से हरेक पाए. अच्छा देखिए ऐसा है, बहुत माजरत के साथ कि जाना है 7 बजे जाना था लेकिन हम सब की वजह से 7:30. मैं 2 मिनट और लेना चाहूँगा. वो ये कि हमारे एक बहुत मोहतरम और कम्युनिस्ट तहरीक के एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान के हमारे सरपारकर के थे जाम शाकी के साथ मौजूद हैं. जाम शाकी ने अपने साहबजादे का नाम रखा सज्जाद ज़हीर यहाँ पर आए हैं आपको थर की एक शॉल पेश करने के लिए. मुझे सिर्फ 2 मिनट इनके ससुर भी यहाँ पर मौजूद हैं. रमजान मेमन साहब आप जल्दी से आ जाइए क्योंकि इन्हें निकलना बहुत ज़्यादा नहीं हो सकेगा.
ठीक है, आप फोन उस सवाल से नाम बता आप जाके बात करने मुआशी मार्क्सिज्म जो है ना वो तो हम पढ़ते भी हैं, उसको एम्प्लॉय भी करते हैं अपनी तहरीकों में, अपने काम में, लेकिन जो सकाफती मार्क्सिज्म है वो हमारा जो है ना वो पीछे रह जाता है, बल्कि हमारे अपने मार्क्सिस्ट जो है ना वो सकाफती तौर पर जो है वो कहीं कहीं रुझानात का शिकार नजर आ रहा है। हम उसको ना आर्ट और दीगर जो शोबे हैं वो उसको हम ना एम्प्लॉय नहीं कर रहे होते अपनी तहरीकों में, वो एक कटा हुआ फेज है। मुझे एक दो बातें बताइएगा, एक के क्या हिंदुस्तान में भी ये सूरत हाल है, दूसरा ये कि अगर आप कोई मशवरा देना चाहें उसका बता मुश्किल है ये, और ये मुस्तकिल मुश्किल बनी रहेगी, क्योंकि हम लोग जिस माहौल में जी रहे हैं उससे आप इनकार नहीं कर सकते कि वो एक बुर्जुआ, तो इसलिए उसकी जो सहूलतें दी जा रही हैं या जो भी काम मिल रहा है या जिस तरह से आपको बैलेंस करना है अपने आप को, उसमें बह जाना या थोड़ी दूर उसके साथ चल लेना मेरे ख्याल से एक वक्त में ज़रूरी हो जाता है लोगों के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो उससे इनकार कर पाते हैं और पूरे इंडिपेंडेंट सोच के साथ जीते हैं। कैपिटलिज्म ने दो चीज़ें की हैं, एक तो ज़िंदगी को बहुत महंगा कर दिया, बहुत महंगा है रोज़ का, आप कम से कम भी अगर सोचें कि तो वो बहुत ही खर्चा आपका जो है वो ज़्यादा है। दूसरी चीज़ जो की है वो ये कि हम लोगों को आइसोलेट कर दिया है, हम लोग सब आइसोलेटेड हैं और हम सोचते हैं कि हम साथ रह सकते हैं, और ये समझाया गया है साथ रह सकते हैं मज़हब के ज़रिए। मतलब कोई कुरान खानी होगी, वही रामचरितमानस पढ़ा जाएगा, ये वहाँ आप जमा होंगे, वो कथा जो है वो वहाँ पर वो आपकी समाज है, वो आपकी। तो मेरे ख्याल से ज़रूरत है कि हम अपने लेवल पर अपने कम्यून्स बनाएं और ये कोशिश करें कि हम लोगों के बीच में तबादले ख्याल होता रहे, बार बार इख्तिलाफ हो, कोई बात नहीं, इख्तिलाफ से घबराना नहीं है, इख्तिलाफ होंगे और इख्तिलाफ ज़रूरी हैं। एक साहब ने पूछा था ये कि भाई इतनी कम्युनिस्ट पार्टीज क्यों हैं इंडिया में, तो ये हरिचंद सिंह सुरजीत ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि इसी से तो, इस बहस से तो हम जिंदा हैं, हम अपने अपने आइडियाज़ रख पाते हैं खुल के और हमें रखने की इजाज़त है। आप ये क्यों चाह रहे हैं कि हम एक ही तरह की सोच के हो जाएं, एक ही लीक पे चलते रहें, एक ही तरह से ये हो? तो मल्टीपल चॉइसेस को हम पसंद करें और उसमें से मेरे ख्याल से आप देखिए इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है इस वक्त लैटिन अमेरिका में, दे आर गोइंग सोशलिस्ट, है ना। जो बड़ी बड़ी सरकारें जो सोशलिज्म की तरफ चल पड़ी थी 70s में, उनको मार के ख़त्म किया गया। चिली को भूलिए मत, असली 9/11 वो है जो एलेंदे के साथ किया गया, है ना। 9/11 वो नहीं है जो दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गई, जिसपे आज तक शक है कि अमेरिका ने खुद गिराई कि किसी और ने। सो उन चीज़ों को भूलिए मत। आज भी कोलंबिया उसी तरफ जा रहा है, वेनेजुएला उसी तरफ जा रहा है, ये छोटे मुल्क क्यूबा अभी तक हारा नहीं है। तो we will come back to the Marxist and socialist thought, maybe in a slightly different way. Thank you very much. मैं फिर आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा और आप सबसे ज़्यादा एक इजाज़त आपसे चाहिए, वो ये चाहिए कि इल्तिक़ा इंस्टीट्यूट हर महीने कोशिश करता है कि कम से कम 1 या 2 प्रोग्राम रखें। अब क्योंकि वो कोविड ने हमें सिखाया कि इंटरनेट का इस्तेमाल करें और आपस में मिल जाए, तो हिंदुस्तान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं कि सरहद के ऊपर उस मामले का एक्सपर्ट कौन है। हम आपको तंग कर सकते हैं अगर आप राय दें, उनसे ताल्लुक़ करवा दें, लोगों से कांटेक्ट करवा दूंगी और आपको भी बार बार तकलीफ देते रहेंगे, चाहे इंटरनेट पर ही सही।
एक ग्रुप फोटो आप मोबाइल होती है जरा, ये एक तो इनकी वालदा के नाम से एक लेक्चर हमजा वाहिद के नाम से यादगारी लेक्चर करता है, दूसरा हमजा अलवी साहब के लिए एक डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर करता है। ये दो लेक्चर्स में जो लोग हमें लिख कर दे जाते हैं हम उन्हें छाप देते हैं। ये आपकी इसकी भी मंशूर की भी ले लो, इसके बारे में भी बता दें कुछ आपने। ये तो खैर अब्बास साहब की पार्टी थी जो आमतौर पर और हम सब लोग उसमें होते थे, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इतनी बड़ी मार्क्सिस्ट पार्टी कोई और नहीं थी जिसके सेक्रेटरी तो खैर अब्बास साहब थे। कमाल की पार्टी थी, कमाल का कैडर था, आज तक हम जिंदा हैं उसी के तवज्जुह से। तो ये उनका और एक ग्रुप सबके साथ कर लें तो अच्छा आ जाए आप। हाँ मेरा तो मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे।